Ma'am, I'm audible? Yes, yes, you are audible. Uh, yes, ma'am. Good afternoon, everyone. Now I'm going to talk about some rural entrepreneurs. Hmm. The rural entrepreneur are those that platform Hmm. entrepreneurial activities by establishing industrial and business units within the rural sector of the economy. Rural Hmm. entrepreneurship are often defined as entrepreneurship rising at village level, which can take place in a variety of fields of venture such as business, industry, agriculture, and acts as a Hmm. powerful reason for economic development. Now, Hmm. I am going to discuss about some rural entrepreneurs like, एक minute, Nandini. Let's yes, start. ma'am. Here are some rural entrepreneurs like Mansukh Bhai Prajapati, Madan Lal Kumawat, Kailash Katkar, and Jyoti Reddy. Yes, Nandini. So Everyone, turn on first, your camera. first entrepreneur is Mansukh Bhai Prajapati. Hmm. Mansukh Bhai Prajapati was born in the Prajapati family near Rajkot. Mansukh Bhai grew up in the family of clay makers. He Hmm. acquired this skill since his childhood, which was full of Hmm. hardship and tolerance. He started Hmm. his journey from a tea stall and reached a Hmm. point in life where he took a Hmm. loan of rupees 30,000 for setting Hmm. up his own earthen plate manufacturing factory. His Hmm. desire to grow in life led to him. He Hmm. developed the roof tile developing machine producing 700 earthen pans a day. Hmm. It was a very beneficial step which was took by Mansukh Bhai Prajapati. Our Hmm. next entrepreneur is Hmm. Madan Lal Kumawat. He was Hmm. born in a family of carpenter in small village. He spent Hmm. his childhood in poverty and because of Hmm. financial issues, he had to Hmm. quit school after fourth Hmm. grade and Hmm. worked as a carpenter. But Hmm. his health was deteriorated because of wood dust. He Hmm. decided to do something of his own and ended up developing a fuel efficient multi crop thresher. Hmm. Farmers benefit massively from the multi-grain friendly thresher that yielded What is cleaner. what is the use of thresher? मैम ये ग्रेन्स को क्लीन करता है और ये कॉस्ट ऑफ क्लीनिंग को भी काफी कम करता है एज कम्पेयर टू जो ट्रेडिशनल तरीका है ग्रेन्स को Hmm. क्लीन Hmm. करने Hmm. का यस मैम Hmm. Hmm. so Okay, it very is good. very yes ma'am so it is very beneficial for the farmers and with the Hmm. help of this thresher Hmm. cleaner technology is the cost is very low and Hmm. it is very friendly thresher that yielded cleaner grains and eliminated the cost of cleaning. Hmm. So Very good. our next entrepreneur is Kailash Katkar. Hmm. He was born to a Maharashtrian family in Hmm. Rahimatpur in a small village. His father Hmm. worked as a machine setter. He quit Hmm. his job Hmm. because of family problems and Hmm. started repairing calculator. Hmm. Gradually, he became proficient in the repairing of popular official gadgets and other D gadget में spelling होगा GADGET. Okay. Okay. sorry Next ma'am, one. Okay. Next. and other appliances. Then he took his big step and found CAT, Computer Services Limited, which famously known as Quick Hill Technologies. Very good. Uh, Next. Next one is Jyoti Reddy. Uh, Hmm. she was born as fifth child to a poor family. He admitted Hmm. into a welfare orphanage and married at Hmm. an early age. She started Hmm. working in the fields to sustain his Hmm. family, but her desire for a bright future led her Hmm. to volunteering, Hmm. teaching, Hmm. stitching, petticoat at night, and various other odd jobs just to sustain his family. She Hmm. decided to study further and obtained a Hmm. BA degree from renowned university. But her Hmm. passion to reach the top, she started her Hmm. own company, Keys Software Hmm. Solutions, in 2016. The company Very good. now stop Hmm. a turnover of USD 50 million. Hmm. So now I conclude my words with a quote that entrepreneurs don't finish when we are tired. We finish when we are alone. Very Thank good. you. Very nice. Thank you. Very nice.
Dear friends, I am the student of BBA first sem. Today I represent my presentation on regional rural bank. Thanks to giving me the now topic regional rural bank. Back. Back. Okay. Yes, sir. Now regional rural bank. Now let's start introduction of regional rural bank. Regional rural banks are local level banking organizations operating in different states of India. Its objective is they have been created with a view to serve mainly rural areas of India, basic banking, financing services. And Very next, good. and next is to provide credit facility to agriculture and rural areas. And now its establishment, Regional Rural Bank established in 1975 by Narsimha Working Committee. And the equity are divided into following ratios are government of India is contributed 50% and state government India is contributed 50% and a sponsor bank that is also known as lead bank that is 5%. And next is the first RRB named Pratham Bank was established in Ahmedabad on 2nd October 1975 and the bank was Syndicate Bank. Next. ओके आई हैव वन क्वेश्चन नरसिम्हम वर्किंग कमेटी जो था उसने किस चीज पे रिपोर्ट बना करके दिया था Narsimham working committee was basically made one report. Tell me what was there in that report. बताइए. Abhinav, I am asking this question from you. I am not able to hear you. बताइए, फिर से बताइए. You are not audible. Yes, ma'am. Hello. हाँ, yes. Speak. Ma'am, ये recommend किया था जो large banks हैं, जैसे National Bank, Local Bank. Basically जो Narsimham working committee था, it made one report on the poor credit facility in basically rural areas. Majority of the people were dependent on money lenders for the loan purposes and they are exploited, and there are very less cooperative banks which are basically giving the loan to the rural people. So in short, the rural people were in miserable condition related with the credit facilities, and that was basically provided by the Narsimham committee. Okay, next. Next slide. Yes, next is role and functions of Regional Rural Bank. First is different types of roles. Now different types of roles of RRBR. First is credit facility. Second is government operations. Third is providing banking facilities. Fourth is all-round development. And the next is accepting deposits. And next is granting loans and growth of rural people. Okay, good. Next. Next is organizational structure of. Your voice is not clear. Still, your voice is not very clear. Yes, ma'am. चलिए बताइए. Now, organizational structure of Regional Rural Bank is following is the decision making of hierarchy of officials in RRB. First, board of directors, chairman, and managing directors. Next is general manager, chief manager, senior manager, manager, and assistant manager. Assistant manager, yes. List of RRBs. Yes, ma'am. Next is list of RRBs of our country is first is Allahabad UP Gramin Bank. Second is Andhra Pradesh Gramin Vikas Bank, and third is Andhra Pragati Bank, Gramin Bank, and next is Himachal Pradesh Rural Bank, and Assam Gramin Vikas Bank, and next is Baroda Gujarat Gramin Bank, and now Bihar Gramin Bank, and last is Rajya Gramin. So how many banks are recently अभी कितने banks हैं RRB के इंडिया में? How many banks are there? SBI हो गया. How many banks RRBs are there? Number of RRBs present in India right now? 43.
Very good. 43 banks are RBs are there, right? It was more than 100 earlier, but because of the bad situation and a very high bad debt, that basically leads to basically क्या हो गया, merge हो गया multiple banks आपस में, because of the lack of proper efficiency and management as well as because of bad debt. So ठीक है, very good. Both of you presentation बहुत अच्छा था, very nice. लेकिन let's start with our today's topic, and that is about the CSR in rural development. Okay, before explaining about this word CSR, आप लोग में से बहुत लोगों को पता होगा कि हम लोग भी नॉर्मली कई बार सोशल वर्क करते हैं ना, जैसे एनजीओ में जाकर के बुक देना, बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाना. सो व्हाई वी आर डूइंग दैट, व्हाई? जो इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव अलग होता है, लेकिन अगर हम एक कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो बिजनेस इज majority of the time business is for the commercial purpose, basically the private companies. But if you want to get a better goodwill in the market, as well as if you want to basically provide something to the society, so many private companies are basically dependent on CSR, corporate social responsibility. See, whatever we are earning it from the society. So it's our duty to give something back to the society. And we are talking about what kind of CSR initiative was taken by multiple companies, private companies, for the rural development. ठीक है? So the very first टाइप ऑफ CSR प्रोग्राम की मैं बात करूं, सो वी ऑल नोज अबाउट द ITC. जो ITC है उसने सोशल इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा किया है, नो डाउट. ITC व्हेन इट केम इन इंडिया इन 1910, it was majority of the product was the tobacco product, but now it is one of the leading FMCG company, right? Hence the ITC groups basically invested in the multiple project in the rural areas. First one is ITC e-Chaupal. We all knows about the electronic Chaupal. The second one is Chaupal Sagar. So e-Chaupal is one of the very beneficial and successful project which was basically taken made, which was the steps was taken by the ITC, right? And the second one is, and यहाँ पर और भी कुछ चीजें हैं जो मैं आपको बताना चाहूंगी about the ITC. Everyone turn on your camera. सो सोशल इन्वेस्टमेंट करना, समाज में अगर आप कुछ इन्वेस्ट करते हैं तो इट विल हेल्प यू टू ग्रो योर कंपनी एज वेल, बिकॉज द पीपल आर स्टार्ट रिकॉग्नाइजिंग यू, पॉजिटिव एक इमेज बनेगा पब्लिक के सामने. ठीक है? सो ITC जो है उसने एक लार्ज स्केल सोशल इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम किया था, और उसका नाम उन्होंने क्या रखा था? सोशल इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम, SIP जो था. SIP का नाम क्या था? बैकबोन, वो मतलब विच फॉर्म द बैकबोन ऑफ MSK, दैट इज मिशन सुनहरा कल. तो मिशन सुनहरा कल जो था ये भी एक प्रोजेक्ट जो था दैट वाज टेकन बाय स्टार्टेड बाय ITC, और ई चौपाल और चौपाल सागर वाज आल्सो स्टार्टेड बाय ITC. तो मिशन सुनहरा कल जो था इसका एम क्या था, मतलब व्हाई दिस प्रोजेक्ट वाज स्टार्टेड बाय ITC. सो ये प्रोजेक्ट का मेन काम था कि टू बिल्ड द रूरल कैपेसिटी इन पार्टनरशिप विद द लोकल कम्युनिटीज टू डेवलप वाटर एंड फॉरेस्ट रिसोर्सेज. तो ITC में क्या था कि ITC कंपनी के कुछ लोग और वहां के लोकल लोगों का एक कोलैबोरेशन बना था, और उस कोलैबोरेशन को क्यों बनाया, क्यों कोलैबोरेट किया गया था, क्यों मर्ज किया गया था, इस पार्टनरशिप को क्यों बनाया गया था? फॉर डेवलपमेंट ऑफ द वाटर रिसोर्सेज एंड द फॉरेस्ट रिसोर्सेज. ठीक है? empowering the women, expand the primary education and drive the future skilling in India. So for the multiple purpose this program was started. MSK, मिशन सुनहरा कल. समझ में आ गया? This point is clear that why MSK was started, and it was started with the partnership. याद रखिएगा, it was not only done by ITC, but it was started with the partnership of the local community. जो वहां के लोग थे उनके साथ पार्टनरशिप के थ्रू ये जो प्रोग्राम था इसको MSK को ITC ने लॉन्च किया था. ठीक है? नेक्स्ट वन इज महिंद्रा एंड महिंद्रा. महिंद्रा एंड महिंद्रा सुना है? यस मैम. महिंद्रा एंड महिंद्रा सुना है. तो महिंद्रा एंड महिंद्रा जो है उन्होंने खैर नेशनल CSR अवार्ड भी जीता है फॉर नेशनल प्रायोरिटी एरिया एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट के लिए, MNM,
Mahindra and Mahindra won the National CSR Award for the National Priority Area Agriculture and Rural Development for Integrated Watershed Management Program. So आप लोगों ने ये नाम जरूर सुना होगा, इंटीग्रेटेड वाटरशेड मैनेजमेंट प्रोग्राम, ठीक है। और ये ऑर्गेनाइज किसके द्वारा किया गया था? इट वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। सो IWMP जो था एक प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप मॉडल था, यानी कि इसमें आपकी मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स थी जो कि पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन है या पब्लिक कंपनी है, एक तरीके से कह सकते हैं आप, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, और आपकी M&M जो है वो आपकी प्राइवेट कंपनी है। सो इन दोनों का मिलकर के एक पार्टनरशिप हुआ था प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप मॉडल के थ्रू, ठीक है। और इसमें आपके सिर्फ मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स नहीं थे, बल्कि आपकी गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश भी थी, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश, और नाबार्ड जो थी वो भी आपकी इसमें ऑर्गेनाइजेशन जो थी, दैट वाज बेसिकली, ये सब इंटीग्रेटेड होकर के काम कर रहे थे, ठीक है। सो आपके कौन कौन थे? M&M, ठीक है, सेकंड आपके मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स नाबार्ड, और नेक्स्ट है आपके गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश, ठीक है। और इन ये सारा काम था किस चीज के लिए? व्हाई दिस बेसिकली इनिशिएटिव वाज टेकन? बिकॉज टू इंक्रीज द ग्राउंड वाटर टेबल ऑफ द रीजन। देखो पानी की बहुत ज्यादा समस्या है, प्रॉब्लम है, वी ऑल नोज अबाउट इट, और प्योर वाटर जो है वो उसकी क्वांटिटी काफी कम है एज कंपैरेटिवली टू द सॉल्टी वाटर, है ना। तो ऐसे सिचुएशन में जो पानी की कमी रूरल एरियाज में, उस एरियाज में ना हो, इसके लिए यानी कि वाटर शेड फैसिलिटी, ठीक है, वाटर हार्वेस्टिंग जो सिस्टम है उसको यहाँ पर बेसिकली इस प्रोग्राम में, इस प्रोजेक्ट में उसी के ऊपर फोकस किया गया था, ठीक है, टू इंक्रीज द ग्राउंड वाटर टेबल ऑफ द रीजन। और इसको लगभग 48 विलेजेस में इंप्लीमेंट किया गया, जिसमें से 35 जो विलेज थे दैट वाज इन भोपाल एंड 13 विलेजेस इन हट्टा। सो बेसिकली अराउंड 48 विलेजेस में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया, या 48 विलेजेस में इसने काम किया। और दिस प्रोजेक्ट विल आल्सो हेल्प टू इंक्रीज द एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी and improve the overall standard of living by benefiting around 38,447 people residing in these villages. So in short, this the first program, the name is IWMP, Integrated Watershed Management Program. It was basically started by Mahindra and Mahindra and by the other government bodies. Why this program was started? It was started for the purpose of increasing the ground water level. आगे बात समझ में आया? Everyone, this point is clear. For increasing the ground water table of the region, this thing was implemented, and it was implemented in around 48 villages, और वो सारे मध्य प्रदेश में ही villages थे। और इन्होंने सिर्फ वाटर शेड फैसिलिटी या वाटर टेबल को इंक्रीज करने का सिर्फ काम नहीं किया इन्होंने, ग्राउंड वाटर टेबल का, बल्कि दे ऑल्सो बेसिकली हेल्प्ड इन द इम्प्रूविंग द एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी as well as benefiting to around 38,447 people who are residing in these villages. ठीक है? So this is the first basically initiative which is taken by Mahindra and Mahindra. The second project was Mahindra Haryali. The name was Mahindra Haryali के नाम से एक और भी इन्होंने प्रोजेक्ट शुरू किया था महिंद्रा एंड महिंद्रा ने। और द महिंद्रा ग्रुप जो थी उसने अराउंड प्लांट किया था 1.52 मिलियन ट्रीज। अच्छा, 1 मिलियन में कितना लाख होता है? 1 मिलियन में कितना? वेरी गुड। तो 10 लाख, तो अराउंड समझ लीजिए कि 1.52 मिलियन का मतलब कितना हुआ? 15,02,000, है ना। तो 15 लाख के अराउंड इन्होंने प्लांट लगाया, आप सोचिए। और why this program was started? For basically protecting the biodiversity in the country. And of these, इसमें से लगभग 1.13 मिलियन जो ट्रीज थे they were planted in the Araku Valley। और उसके अलावा आपके इस जो ग्रीनिंग करने के अलावा, मतलब ग्रीनरी के पर्पस के अलावा, they also provided or support the tribal farmers। इन्होंने ट्राइबल फार्मर्स को भी हेल्प किया था for growing the coffee and fruit bearing trees in this region. So it is not about the plants only, but they also supported the tribal over that valley or area
For what? For two things: for increasing their livelihood, for making their life better, and for commercial purpose, ताकि वो fruits वगैरह जो है वो गा पाए, and then after that they are able to sell that to the market. So मतलब इन्होंने सिर्फ और सिर्फ ग्रीनरी के बारे में नहीं बताया, they also supported the tribal over that area. So I guess this point is clear to everyone. Yes, ma'am. Yes. Okay. चलिए, नेक्स्ट वन इज, इन्होंने एक और भी इनिशिएटिव सीएसआर प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था. इसका नाम क्या था? वर्धा फार्मर फैमिली प्रोजेक्ट एंड कृषि मित्रा प्रोजेक्ट. वर्धा लिखे, WARDHA, वर्धा फार्मर फैमिली प्रोजेक्ट एंड कृषि मित्रा प्रोजेक्ट. तो सबसे पहला जो प्रोजेक्ट था वो तो याद होगा, IWMP. सेकेंड प्रोजेक्ट था महिंद्रा हरियाली. थर्ड जो प्रोजेक्ट था दैट वाज वर्धा फार्मर फैमिली प्रोजेक्ट एंड कृषि मित्रा प्रोजेक्ट. ठीक है, तो ये जो प्रोजेक्ट था, व्हाई इट वाज स्टार्टेड, द कंपनी कंटिन्यू टू सपोर्ट द स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स बाय ट्रेनिंग देम इफेक्टिव फार्मिंग प्रैक्टिसेस इंक्लूडिंग द सॉइल हेल्थ, क्रॉप प्लानिंग, creating model farm and biodynamic farming practices, and increasing the water table with a view to increasing the crop productivity. So basically these two, ये एक साथ मिला हुआ है एक तरीके से. प्रोजेक्ट का नाम वर्धा फार्मर फैमिली प्रोजेक्ट एंड कृषि मित्रा प्रोजेक्ट. ये जो प्रोजेक्ट था ना, इट वाज स्टार्टेड विद द पर्पस ऑफ सपोर्टिंग दूस फार्मर्स, मार्जिनल फार्मर्स, टीनेंट्स, और कह सकते हैं हम आपके टिलर्स, और जो एक होता है ना कि जो दूसरे के लैंड पर काम करते हैं, तो वो किस तरीके से इफिशिएंसी इंक्रीज कर सकते हैं. जो छोटे छोटे फार्मर्स होते हैं, कम उनके पास लैंड होता है, तो उनके लिए ये प्रोजेक्ट को शुरू किया गया था, ताकि उनको ट्रेनिंग दिया जा सके कि किस तरीके से आप कौन से सॉइल में कौन से क्रॉप उगा सकते हो, कब सॉइल का सिचुएशन वर्स हो सकता है. जैसे सॉइल इरोजन जो है वो आप लोगों ने सुना होगा. सॉइल इरोजन से क्या होता है, आपका जो सॉइल का जितना भी न्यूट्रिएंट्स है वो सब बह चला जाता है, बह जाता है. ठीक है, so it is sometime happening because of the landslides and all. तो सॉइल इरोजन के सिचुएशन में आपकी फर्टिलिटी ऑफ सॉइल इतनी रिड्यूस हो जाती है कि इट इज नॉट सूटेबल फॉर क्रॉपिंग पर्पस. ठीक है, so how we can maintain the health of the soil, so such kind of training is provided by the provided under this project, as well as crop planning, that have in first season what kind of crop you can basically मतलब कौन से सो कर सकते हो आप, सीड्स वगैरह कौन सी आप क्रॉपिंग कर सकते हो सेकंड सीजन में, थर्ड सीजन में, तो व्हाट विल बी द क्रॉपिंग पैटर्न. एंड इसमें भी 3-4 टाइप की आपकी फार्मिंग होती है. इंटेंसिव फार्मिंग आप लोगों ने सुना होगा. सो फार्मिंग का क्या आपका पैटर्न होगा वो, और ये सारी चीजें जो हैं ये बेसिकली फार्मर्स के लिए था. और फार्मर्स के लिए क्यों था? बिकॉज सम मार्जिनल फार्मर्स आर नॉट एबल टू गेट द इंफॉर्मेशन अबाउट द, they are totally dependent on the natural thing sometime. ठीक है, सो इसी वजह से ये प्रोजेक्ट जो था इसको लाया गया था टू सपोर्ट द स्मॉल फार्मर्स. सो आई गेस दिस पॉइंट इज क्लियर टू एवरीवन. समझ में आ गया सबको? Yes. Mahindra, what kind of project started by Mahindra and Mahindra CSR project that is completed. Next one is HDFC Bank. HDFC Bank. HDFC Bank. So HDFC Bank is one of the leading public bank we all know. HDFC अब नंबर 1 पे चल रहा है आपके पब्लिक बैंक में. सेकंड मतलब इट्स अबाउट द नॉर्मल बैंक, मतलब आपके इंडिविजुअल और शेड्यूल बैंक में अगर बोला जाए. सेकंड में आपका चल रहा है गवर्नमेंट सेक्टर में SBI, एंड थर्ड इज ICICI. सो HDFC बैंक जो है, they also basically contributed for the rural development, and the program named as होलिस्टिक रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम. सो HRDP के नाम से इन्होंने एक CSR इनिशिएटिव, CSR प्रोजेक्ट को शुरू किया. और HDFC बैंक फ्लैगशिप प्रोजेक्ट विद इन द CSR अम्ब्रेला. और इस HRDP प्रोग्राम को किसके अंडर शुरू किया गया? तो एक परिवर्तन नाम के प्रोग्राम के अंडर इसको शुरू किया गया. इट वॉज डेवलप्ड विद द बिलीफ that rural development is central and significant to the nation's economic development, and that is somehow truth. Why? Because majority of the people are living in the rural areas in India. अभी भी वही हाल है. It is around 60% से ज़्यादा. So if rural areas are not developed, India cannot able to develop. So with this theme, they started this initiative. Now, what is the basically role of HRDP?
तो देखो रूरल जो पॉपुलेशन है इट इज प्रीडोमिनेंटली इंगेज इन एग्रीकल्चर। अगर हम लोग नेशनल काउंसिल ऑफ इंडिया की बात समझे तो लगभग 75% मेल मेंबर्स जिस भी जगह पे एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज में इंगेज हैं, सो दैट एरियाज विथ पॉपुलेशन लेस देन 5000 इज कंसिडर एज द रूरल एरिया, है ना। जो आपका रूरल पॉपुलेशन है वो प्रीडोमिनेंटली इट इज इंगेज्ड इन द एग्रीकल्चर एंड कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन द रेन फेड इरिगेशन। सो व्हेन द ग्रीन रिवॉल्यूशन केम इन 1965 द फर्स्ट फेज, उस समय भी हमने हाई यील्डिंग वेराइटी सीड्स वगैरह ये सब चीजें तो हमने समझ लिया था कि HYV सीड्स वगैरह कैसे, इरिगेशन कैसे करना है, पंप, न्यू टेक्नोलॉजी, एवरीथिंग। बट स्टिल मेजॉरिटी ऑफ द पीपल आर डिपेंडेंट ऑन द इरिगेशन पे आज भी, मतलब इरिगेशन फैसिलिटी उनके पास बेटर नहीं है। तो रेन फेड इरिगेशन का मतलब होता है जब बारिश होगी तभी पानी जो है वो खेत में पड़ेगा, उसी से आपका प्रोडक्शन होगा क्रॉप का। जो प्रोग्राम था ये आइडेंटिफाई कर रहा था एंड एड्रेस कर रहा था क्रिटिकल नीड्स ऑफ ईच विलेजेस अडॉप्टेड एज अ पार्ट ऑफ प्रोग्राम। तो वो हर एक विलेजेस में देखा जा रहा था कि कौन से विलेज में क्या सिचुएशन है, व्हाट इज द सिचुएशन ऑफ द विलेजेस, एंड उस बेसिस पर दिस प्रोग्राम वाज स्टार्टेड कि जो विलेजेस में इरिगेशन की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है तो HRDP प्रोग्राम के अंडर में उनको सहायता, ये हेल्प किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट वन इज जो ये इनिशिएटिव था आर इन लाइन विद द आदर्श गांव अभियान। और इस इनिशिएटिव के साथ एक और भी आपका इनिशिएटिव चल रहा था, वो क्या था, दैट इज आदर्श गांव अभियान। ठीक है, और ये शुरू किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। ठीक है, और यहाँ पर भी क्या चीज देखा जा रहा था, यहाँ पर भी देखा जा रहा था प्रॉब्लम्स विच इज रिलेटेड विद द इरिगेशन एंड एग्रीकल्चरल फैसिलिटीज। ठीक है, सो दीज प्रोग्राम्स वाज स्टार्टेड बाय HDFC बैंक। HDFC बैंक के द्वारा HRDP जो है स्टार्ट किया गया, होलिस्टिक रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम। समझ में आया दिस पॉइंट इज क्लियर एवरीवन? टर्न ओके, सो नेक्स्ट इनिशिएटिव वाज टेकन बाय हीरो मोटोकॉर्प। चलिए, सो वी वर टॉकिंग अबाउट द हीरो मोटोकॉर्प। सो हीरो मोटोकॉर्प जो है, आप लोगों ने सुना होगा नाम हीरो मोटोकॉर्प का। पहले हीरो होंडा था, अब नाउ इट इज बेसिकली, अब ये दोनों सेग्रीगेट हो गए हैं एंड नाउ इट इज नेम्ड एज अ हीरो मोटोकॉर्प। सो हीरो मोटोकॉर्प जो है उन्होंने भी एक CSR एक प्रोग्राम प्रोजेक्ट शुरू किया था, और ये जो CSR प्रोजेक्ट था दैट इज बेसिकली, इसका नाम क्या था, ये जो हीरो मोटोकॉर्प ने जो ये प्रोग्राम शुरू किया था CSR प्रोग्राम, ये इम्प्लीमेंट किया गया था। इन्होंने बहुत सारे जगह पे अपने प्लांट्स और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को स्टैब्लिश किया था और नाम दिया था हीरो वी केयर। ठीक है, tries to make a positive influence on the aspect of healthcare and basic infrastructure need like access to water and power। ठीक है, ये जो हीरो वी केयर का जो इनिशिएटिव था, इट इज बेसिकली फॉर इम्प्रूविंग द हेल्थ केयर फैसिलिटी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर नीड इन द रूरल एरियाज। जो CSR डिपार्टमेंट जो इसके लिए वर्क कर, मतलब CSR डिपार्टमेंट वर्क विद द इम्प्लीमेंटिंग द पार्टनर एजेंसीज एंड टू मेक द रूरल women self-reliant। So it is not only about the infrastructure, but they are basically working for the rural women employment and they encourage the entrepreneurship as well। ठीक है, so the regions where CSR programs are implemented fall in the operational areas of companies plant and the manufacturing unit। What is the meaning of that? कि जहां पर इनकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट या प्लांट थी, मतलब जहां हीरो मोटोकॉर्प की जहां पर भी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट थी, उस एरिया में जितने भी विलेजेस थे वहां के लिए इन्होंने ये प्रोग्राम शुरू किया था और नाम दिया था हीरो वी केयर। ठीक है, और वहां पर ये क्या ध्यान दे रहे थे, दे वर बेसिकली focusing on the infrastructure need like access to water, power and all, and they also working for the making women empowered as well as self-reliant, and they were encouraging the entrepreneurship। ठीक है, और उसके अलावा ये और भी क्या क्या चीजें कर रहे थे, लाइक अपार्ट फ्रॉम प्रोवाइडिंग द विलेजेस विद द बेसिक हेल्थ केयर फैसिलिटी, दे रिवैम्पिंग द स्कूल्स इन देयर विलेजेस। सो दे वर स्टार्टिंग सम ऑफ द स्कूल्स इन द विलेजेस एंड उसके अलावा दे ऑल्सो बेसिकली डूइंग ऑल दीज थिंग्स इन द सस्टेनेबल मोड। ठीक है,
सो इन्होंने इस बेसिकली प्रोजेक्ट से बहुत सारी चीजों पे फोकस किया, लाइक हेल्थ केयर पे फोकस किया, कम्युनिटी सेंटर्स बनाया, रिबिल्ड किया हैंड पंप्स को, पानी की समस्या जो है हैंड पंप्स को, वाटर फिल्टर्स लगवाया, रोड्स बनवाया, ठीक है। और यहाँ तक कि हीरो ने ऑर्गेनाइज किया था एक एनिमल चेकअप कैंप, मतलब जिनके पास भी जो भी एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व है, तो एग्रीकल्चर का मतलब सिर्फ फूड क्रॉप से रिलेटेड नहीं होता, एग्रीकल्चर में आपका एनिमल से रिलेटेड लाइव स्टॉक भी आ जाता है एग्रीकल्चर, याद है ना, पता है ना ये चीज, ठीक है। सो आपके यहाँ पर इन्होंने एनिमल चेकअप कैंप्स भी लगाया था, लाइव स्टॉक ऑफ द कम्युनिटी, एंड ऑल्सो कंडक्टेड वर्कशॉप विद द फार्मर हाउ टू हैव अ बेटर फूड प्रोड्यूस। सो हीरो वी केयर के अंडर में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का काम हुआ, स्कूल्स, हेल्थ केयर, रोड्स, वाटर पंप्स, ठीक है। उसके अलावा दे बेसिकली उन्होंने कैंप लगाया एनिमल चेकअप्स के लिए, ठीक है। उसके बाद they also basically organize the workshop with the farmers that how they can how to have better food produce, how मतलब वो किस तरीके से better food produce कर सकते हैं, कौन, farmers. So this point is clear. Yes, ma'am. This point is clear. Okay, next one is Tata Groups. Tata Group. तो टाटा ग्रुप का नाम तो सबने सुना ही होगा, कुछ कंपनीज का नाम बताओ, कितनी कंपनीज हैं अभी लगभग टाटा ग्रुप्स में, बताओ कौन कौन सी कंपनी आती हैं। टाटा क्लिक, तनिष्क, टाइटन, क्रोमा, स्टारबक्स, टीसीएस टाटा कंसल्टेंसी सर्विस, टाटा टेलीकम्युनिकेशन, ये सारा टाटा ग्रुप का पार्ट है। टाटा एफएमसीजी, जो टाटा का आप लोग सॉल्ट लेते हो, फिर टाटा का आप लोग जो चाय पत्ती टी लीव्स लेते हो, दीज ऑल आर बेसिकली ऑफ द टाटा ग्रुप। मैम किसको टेलको भी है? हाँ, अभी आपका वोल्टास जो है वो भी आपका टाटा का ही है, तो ठीक है। तो टाटा, हाँ, जो टाटा ग्रुप है बेसिकली उन्होंने क्या सीएसआर प्रोजेक्ट को शुरू किया था। टाटा क्लिक अभी ऑनलाइन नया साइट ओपन हुआ है टाटा के द्वारा, जैसे आपका अमेजोन वगैरह है जैसे आपका, वैसे ही टाटा क्लिक में आप प्रोडक्ट को परचेज कर सकते हो, दैट इज एन एप्लीकेशन, ठीक है। सो ट्रांसफॉर्मिंग रूरल इंडिया के नाम से टाटा ट्रस्ट जो है, इट इज अ टाटा ट्रस्ट के थ्रू ये इनिशिएटिव जो है शुरू किया गया। और ये किस किस चीजों के लिए, इसका मेन मकसद क्या था, व्हाई दिस TRI वाज बेसिकली स्टार्टेड बाय टाटा ग्रुप। सो जो ट्रांसफॉर्मिंग रूरल इंडिया जो है, ये इनिशिएटिव शुरू किया गया था फॉर इराडिक्टिंग द पॉवर्टी, यानी पॉवर्टी को कम करना, ये मेन एम था। और इन्होंने 3 स्टेट में इसको शुरू किया था, दैट इज स्टार्टेड इन 3 स्टेट्स। पहला जो नाम है दैट इज मध्य प्रदेश में, झारखंड में और छत्तीसगढ़ में। इन्होंने उन सारी जगह पे शुरू किया था ये प्रोजेक्ट जहां पर बहुत ज्यादा पॉवर्टी है। और TRI जो है आपका, ये लॉन्ग टर्म गोल था, और इन्होंने लगभग 1 लाख विलेजेस को कवर कर लिया था, 1 लाख विलेजेस को कवर कर लिया था, 1000 ब्लॉक्स को, और 200 मिलियन लोगों को, 200 मिलियन लोगों को इन्होंने TRI में कवर किया था, ठीक है। अब ये जो CSR प्रोग्राम था, लैंडमार्क्स अचीवमेंट इंक्लूडिंग इन इम्प्लीमेंटिंग, और इसके अंडर में क्या क्या चीजें आई थी, तो हेल्थ एंड न्यूट्रिशन फोकस्ड इंटरवेंशन किया गया, लगभग 342 विलेजेस को कवर किया गया मध्य प्रदेश में, 710 कम्युनिटी वॉलेंटियर्स रखे गए। उसके अलावा इनिशिएट किया गया डिस्कशन ऑफ अराउंड 2070 वुमेन ग्रुप्स, ठीक है। और ये सब जो चीजें थी, फिर उसके अलावा इसमें आपके और भी चीजें थी, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन भी शामिल थी आपकी। सो ये आपका प्रोग्राम जो था ये शुरू किया गया था, TRI ट्रांसफॉर्मिंग रूरल इंडिया। उसके अलावा एक और था कुशल किसान अभियान। सो कुशल किसान अभियान जो था, इट वाज आल्सो स्टार्टेड बाय टाटा ग्रुप, एंड इसका क्या मेन रीजन था, सो इट इज बेसिकली फॉर इन्होंने ये कॉमर्शियल एग्रीकल्चर को किस तरीके से मार्केट में, मतलब एक बोल सकते हैं ना, रूरल मार्केट में क्या सिचुएशन है कि द पीपल आर डिपेंडेंट ऑन द मीडिएटर फॉर सेलिंग द प्रोडक्ट टू द फाइनल मार्केट। तो यहाँ पर जो था ना कि कॉमर्शियल क्रॉपिंग आप कैसे कर सकते हो, कॉमर्शियल क्रॉपिंग मतलब जो क्रॉप आप उगा रहे हो उसको आप कैसे मार्केट तक सेल कर सकते हो, तो उसके लिए कुशल किसान अभियान जो था, कॉमर्शियल एग्रीकल्चर को किस तरीके से आप अडॉप्ट कर सकते हो, उसके लिए इन्होंने कुशल किसान अभियान शुरू किया था
by using the rural media channel. So rural media channel तुम लोग को पता ही होगा, वॉल पेंटिंग हो गया, आपका हाट हो गया, मेला हो गया, ये सब तरीके से हम रूरल जो है रूरल एरियाज में अवेयरनेस इंक्रीज करते हैं. सो रूरल मीडिया चैनल के थ्रू दे स्टार्टेड दिस इनिशिएटिव. और इन्होंने इसमें लगभग 3 ब्लॉक को कवर किया था झारखंड में, और लगभग 7,000 फार्मर्स को, और लगभग आप समझिए 630 फार्मर्स जो था उनका इनकम इंक्रीज हो गया था 1 लाख तक, 1 लाख से ऊपर उनका इनकम इंक्रीज हो गया था. ठीक है. सो दिस इज हाउ दिस कुशल किसान अभियान एंड द TRI वाज बेसिकली स्टार्टेड बाय टाटा ग्रुप. नेक्स्ट वन इज NTPC. अच्छा, एक इसको लिख लो पहले, आदित्य बिरला ग्रुप. अच्छा, आदित्य बिरला ग्रुप की कौन कौन से आते हैं, कौन कौन से रिटेल कंपनी, जरा बताना. आदित्य बिरला ग्रुप की बताइए. आदित्य बिरला ग्रुप का पैंटालून्स आदित्य बिरला ग्रुप का है. आदित्य बिरला सीमेंट आदित्य बिरला का ही है क्या? तुम लोग को कोई जनरल नॉलेज और अवेयरनेस नहीं है सीरियसली. सो आदित्य बिरला ग्रुप की अगर हम बात करें, सो दे बेसिकली स्टार्टेड द इनिशिएटिव फॉर इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ द लाइफ फॉर द रूरल पीपल. यहाँ पर इन्होंने सोशल वेलफेयर का काम किया था, और लगभग 7,000 विलेजेस में इन्होंने ये काम किया. 9 मिलियन लोगों को ये काम, मतलब ये इनिशिएटिव ने इफेक्ट किया. और ये जो था, ये आपका जो रूरल कम्युनिटी के लिए जो इनिशिएटिव लिया गया था, इट वाज बेसिकली चेयर्ड बाय द राष्ट्रीय बिरला, मतलब राष्ट्रीय बिरला जो थी उन्होंने इस पूरे के पूरे प्रोजेक्ट को लीड किया. ये जो इसमें आपका क्या प्रोजेक्ट था, दैट वाज मॉडल विलेजेस इज अ ट्रांसफॉर्मेटिव प्रोजेक्ट अंडर देयर रूरल प्रोग्राम फॉर विच द, एक मिनट इतनी गर्मी लग रही है, रूरल वेलफेयर के लिए. And it impacted on the quality of life of the rural poor people as well. The group जो है वो उन्होंने इम्प्लीमेंट किया सोशल वेलफेयर लगभग 7,000 विलेजेस में, और जिसमें से 9 मिलियन लोगों को इन्होंने इफेक्ट किया है थ्रू द आदित्य बिरला सेंटर फॉर द कम्युनिटी इनिशिएटिव एंड रूरल डेवलपमेंट. तो ये एक नाम है इनका, एक इनिशिएटिव का, दैट इज आदित्य बिरला सेंटर फॉर कम्युनिटी इनिशिएटिव एंड रूरल डेवलपमेंट. और इसको लीड या फिर इसका जो चेयर पर्सन है वो कौन है? राष्ट्रीय बिरला. ठीक है. सो यहाँ पर इन्होंने लगभग ये जो प्रोग्राम था इसको शुरू किया था पॉवर्टी को डिक्रीज करने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए. ठीक है. और इन्होंने कौन कौन सी एरिया में इसको शुरू किया था? तमिलनाडु, कर्नाटका, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश एंड राजस्थान. सो दीज आर सम इनिशिएटिव्स ऑफ द इनिशिएटिव व्हिच इज टेकन बाय द इंडियन कंपनी. ठीक है. सो आई गेस दीज पॉइंट्स आर क्लियर टू एवरीवन. समझ में आ गया? Yes, ma'am.